Hello everyone. Today the fifth unit of Introduction to Solid Mechanics KCE 402. Module fifth. In this fifth modules we will discuss about the two important things related to the solid mechanics. In first part we will discuss about the spring, and in second part we will discuss about the cylinders. Okay. So, in spring we discuss about the different type of springs, difference between those springs, and energy stored in the spring, and how the practical application of the springs. Okay. So, first of all let me introduce to myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BVD and IIT Lucknow. Let us start today's first lectures, Introduction to Solid Mechanics KCE 402, Module 5, lecture number 1. Okay, so, introduction starting. The primary function of a spring is to deflect or distortion under load and to recover its original shape when the load is released. During deflection or distortion, it absorbs energy and release the same as and when required. Either we can say spring are used in many engineering applications such as automobiles, railway buffers in order to cushion, absorbs or control energy due to shock and vibration. Okay. And spring will suffer a seizable changes in form without being distortion permanently when the load are applied. There are the mainly two type of the spring classified, that is the leaf spring and helical spring. Okay. In leaf spring there are the sheets, and in helical spring there is a wire which is form a helix. Okay. And we can also define the leaf spring consists of number of thin curved plates, each of which have the same thickness. Width of the curved plates are the same, but of the different lengths. All vents of the same curvature. The leaf spring, in leaf spring the sheets or plates we use, they have the same curvature, length or different, and either other factors are the same. Helical spring are formed by the coiling thick spring wire into a helix. Helical spring are classified into two groups. Okay. One is the closed helical spring and another is the open helical spring. This is defined on the basis of the angle, that is whenever we form the helical spring, then there is some angle forms with the helix. That angle if greater than the 10 degree, then we can say it is a open helical spring. If the angle is less than 10 degree, then we can say it is a close. Okay. If however helical angle is significant, then we can wire the experience both the torsional and the bending stresses. Such type of spring is termed as the open coiled helical springs. Okay. So, these are the some basic overall criteria about the springs which we will discuss. So, objective after studying this unit, you should be able to differentiate between closed coil, open coils and leaf spring. Calculate the stresses in spring whenever we applied the load, and when remove the load, then different conditions are created. So, we can also find it the stresses created, stresses produces in the springs. We calculate by using some formulas and we derive the relations for that formulas. Calculate the deflection of the spring also, and different type of loads, that is the proof loads and stiffness of the spring which is denoted by the K. Identify the area of application of spring to the practical situations. After completion of this unit, we will understand these type of things. So, let us start first of all what is spring. Okay. तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग
कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल से बनाया हुआ कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी शेप में होगा तो उसको हम लोग स्प्रिंग बोलेंगे। अब ये दो टाइप की मेनली होती है, एक आपकी रहेगी बेसिकली अगर डिफाइन की जाए लीफ टाइप की, इसको बोलते हैं हम लोग लीफ। क्यों बोलते हैं लीफ टाइप? और ये बोलेंगे हेलिकल। ओके, लीफ और हेलिकल, देखिए दोनों में क्या है डिफरेंस। लीफ टाइप में क्या होता है कि ये जो प्लेट्स लगी हैं, देखो ये लगी प्लेट्स, ये प्लेट्स है, उसके बाद एक और प्लेट्स है, दिस प्लेट्स। ओके, इस तरीके से मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लेट्स लगी होंगी, ये डिफरेंट प्लेट्स। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो ट्रक आपने देखेंगे, ट्रक में नीचे वहाँ पे देखिएगा सॉफ्ट पे जो उसकी लगी होती है उस पर ये इस तरीके से रहती हैं सस्पेंशन पे, तो ये ऐसे रहेगी और ये क्या होगा, ये प्लेट्स होंगी, थोड़ी कर्वेचर रहेगा इनमें। ओके, ये कर्वेचर रहता है और ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ये कनेक्ट की जाती हैं, ये देखिए। और सभी प्लेट्स का जो कर्वेचर रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, जो इनकी विड्थ होगी दैट इज ऑल्सो सेम, और थिकनेस जो होगी वो भी प्लेट्स की सेम ही रहेगी, बस डिफरेंट क्या होगी, लेंथ। देखिए इसकी लेंथ अलग होगी ये, तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ लीव्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है उनकी अलग होती है, उसके बाद में यहाँ पर 2-3 लीफ लगाई जाती हैं जो कि इक्वल लेंथ की इसमें अप्लाई की जाती हैं। ओके, यहाँ पे फिर ये बोल्ट्स लगते हैं सेंट्रल कैंपिंग के द्वारा, इनको हम सबको जोड़ते हैं। ओके, तब ये स्प्रिंग तैयार होती है। टोटल स्प्रिंग जो ये इसकी दोनों स्प्रिंग के साइड में इस तरीके से आईज बनी होती है, उनको हम आई बोलते हैं। ओके, और सबसे ऊपर वाली जो लीफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ्स। ओके, तो ये लीफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्प्रिंग 2 टाइप्स मेनली डिवाइड की गई है मैंने, एक आपकी हेलिकल और एक लीफ। तो लीफ स्प्रिंग में इस तरीके से लीफ्स ये सब होती हैं और इन सबको कलेक्ट करके बोल्ट से कलेक्ट करते हैं और फिर ये स्प्रिंग जो मिलती है इसको हम लोग लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। ओके, इसका टोटल स्पेन जो रहता है वो लेंथ हाफ अगर इतनी ली जाएगी एल, तो ये टोटल 2L हो जाती है। ओके, इसको, और जो यहाँ से लेकर देखिए ये जो राइज होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बर। सेंट्रल कैंप लगी होती है, ग्रेजुएटेड लीव्स इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएटेड लीव्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज देखिए ये इंक्रीज कर रही है, इसकी लेंथ सेम नहीं होती है। तो जो कुछ लीव्स यूज करते हैं उनकी लेंथ सेम नहीं होती है, उसके बाद में कुछ लीव्स होती हैं जिनकी लेंथ सेम होती है और उसके बाद में सबसे ऊपर एक मास्टर लीफ लगी होती है। ओके, तो ये जो कनेक्शन होता है और ये तैयार होकर मिलती है जो भी स्प्रिंग, इसको भी स्प्रिंग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। सेकेंड टाइप की स्प्रिंग जो मैंने बताई हेलिकल। देखो हेलिकल समझते हो कि वहाँ पे ऐसे हेलिक्स बना हो, तो ये वायर का होता है, एक वायर होता है, थिक वायर होता है, उस वायर को इस तरीके से हम लोग, जैसे अगर यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ ऐसे इस तरीके से, ओके, ये स्प्रिंग हो गई। ओके, तो ये देखिए स्प्रिंग दिख रही है, आपने देखा होगा पेन में पड़ी होती है स्प्रिंग होती है, और भी कई जगह पे देखा होगा। तो इस टाइप की, क्योंकि ये हेलिक्स बना रहा है, ओके, हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। इसी को इन्होंने यहाँ पर देखिए डायग्राम में इस तरीके से आपको दिया गया है कि ये इसके रोटेशंस ऐसे चल रहे हैं यहाँ से और इस तरीके से पूरा, और ये W लोड लग रहा है, उसके बारे में बाद में डिफाइन करेंगे। जब ये लोड नहीं लग रहा होगा एट दैट टाइम जो स्प्रिंग मिलेगी और उस समय उसकी जो लेंथ होती है उसको हम लोग फ्री लेंथ बोलते हैं। ओके, कोई भी स्प्रिंग जिस पे कोई भी लोड अप्लाई ना हो रहा हो उस समय जो उसकी लेंथ टोटल होगी उसको फ्री लेंथ बोलेंगे। ये जो डायमीटर होता है, ये मीन डायमीटर देखिए यहाँ पे बना है, ये कहाँ बना है, यहाँ पे जो कॉइल होगी, इस कॉइल के डायमीटर की बात करें तो ये अगर इस तरीके से मैं बना दूँ जो वायर होगा ओके देखो यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ अगर इस तरीके से, और ऐसे रहेगी हमारी, ओके, फिर हमारी इस तरीके से जो रहेगी आपकी इस तरीके से यहाँ आएगी, इधर बनेंगे, ओके, और ये इस तरीके से बनती है, तो ऐसे स्प्रिंग बनती चली जाएगी। ओके, ये इस तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग ऐसे बनती है। अब इसके सेंटर से देखिएगा, यहाँ सेंटर और इस वायर के सेंटर से जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग मीन डायमीटर सॉरी, तो ये मीन डायमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसके एक्सटीरियर से यहाँ पे बात करूँ तो ये जो डायमीटर होता है ये आउटर डायमीटर कहलाता है, और इसके सेंटर से यहाँ, इसके सेंटर पे नहीं, इसके इंटरनल की बात करूँ
और ये डी आई होगा। तो ये इंटरनल डायमीटर होगा। तो दो डायमीटर हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो उनका एवरेज जो होता है वो डी इक्वल टू डी आउटर प्लस डी इंटरनल अपॉन 2 एवरेज निकालोगे, उसको हम लोग बोलेंगे मीन डायमीटर। और ये मीन जो डायमीटर होता है कि कोई भी वायर है जो भी जिससे हम बना रहे हैं स्प्रिंग, उसके सेंटर टू सेंटर का जो डायमीटर रहता है स्प्रिंग का, उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन डायमीटर। ओके, और जो ये वायर यूज कर रहे हैं उसका जो डायमीटर होगा, ये वायर जो यूज कर रहे हो आप, अगर मैं कहूँ ये वायर है आपका, तो इसका जो डायमीटर होगा इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ओके, जो स्प्रिंग बना रहे हैं जिस वायर से, तो उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ओके, एंड जो डिस्टेंस बिटवीन द हेलिक्स 1 एंड 2, देखिए जब हम फॉर्म कर रहे हैं हेलिक्स, तो वहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की होगी, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। ओके, ये बहुत डिफाइन करेगा। पिच के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि ओपन कॉइल है या क्लोज कॉइल है, वो अभी बताएंगे आपको। ओके, तो वायर डायमीटर देखिए ये दिया गया यहाँ पर, ये वाला वायर का डायमीटर स्मॉल डी हो गया, पिच हो गया, फ्री लेंथ हो गई आपकी, ये मीन डायमीटर हो गया, ये हो गया आपका किसमें, हेलिकल स्प्रिंग में। अब इस हेलिकल स्प्रिंग को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। ओके, एक ओपन और दूसरा क्लोज, ये लिखा देखो ओपन कॉइल एंड क्लोज कॉइल। ओके, अब ये समझिए आप कि ओपन कॉइल और क्लोज कॉइल में क्या डिफरेंस है। ठीक, पहले बेसिक हम जान लेते हैं। तो ओपन कॉइल में क्या होगा कि ये जो हम मान लीजिए ये लीफ बन रही है, इस तरीके से स्प्रिंग आ रही है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ऐसे स्प्रिंग चल रही है, ये लीफ वो वायर को ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए अगर यहाँ इसके सेंटर से मैं एक बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन खींचूं और इसके सेंट्रॉइड से ये खींचे, तो ये एक अल्फा एंगल बनेगा। ये देख लीजिए, ये जो अल्फा एक एंगल बन रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो भी स्प्रिंग है वो क्लोज कॉइल है या ओपन कॉइल है। ओके, तो क्लोज कॉइल में क्या होगा, ये अल्फा एंगल की जो वैल्यू होगी इट इज लेस देन 10 डिग्री अबाउट। ओके, इसमें क्या होगा, 10 डिग्री से कम ये एंगल होगा, देन हम कह सकते हैं उस स्प्रिंग को, वी कैन से इट इज अ क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग। एंड इफ द अल्फा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, अल्फा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, then we can say it is a open coil spring. ओके, और है क्या ये एंगल, एंगल वही है जो स्प्रिंग जैसे आप ऐसे रोटेट करोगे तो देखिए कुछ ना कुछ एलिवेशन तो रहेगा। अब अगर इसको मैं देखें हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा एंगल। ठीक, और दूसरी चीज ये समझ सकते हो कि इसमें जो पिच होगी, क्लोज में क्या होता है, क्लोज हेलिकल कॉइल जो स्प्रिंग होगी उसमें पिच कम होगी। ओके, क्योंकि पास पास होंगे इसकी सारी ये जो भी लीफ्स हैं, और ओपन कॉइल में पिच ज़्यादा होती है। तो अब इनका दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों का ये डिफरेंस हुआ कि क्लोज कॉइल जो होगी और ओपन कॉइल होगी, उनका दोनों का यूज अलग अलग होगा। ओके, क्यों, क्योंकि दोनों की वेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी, दोनों पे अलग अलग टाइप के फोर्सेस अप्लाई होंगे। ओके, तो वो जिन फोर्सेस की रिक्वायर होगी वहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली आप समझ गए हैं कि स्प्रिंग जो है दैट इज 2 टाइप्स, लीफ स्प्रिंग एंड हेलिकल स्प्रिंग। और हेलिकल स्प्रिंग को 2 टाइप में और हमने डिफाइन किया है, वो आपका क्लोज और ओपन। और भी कई टाइप की बुक्स में अलग अलग टाइप के लिखे रहते हैं, तो ये बेसिकली मेन आपके हैं। कुछ यहाँ पर इसमें डिफिनीशंस हैं, जो डिफिनीशंस आपको ध्यान रखनी है, वो डिफिनीशंस यहाँ पे लिखी हैं कि जो स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे तो अभी जब आगे कहीं पे ये टर्म्स बोलेंगे तो क्या टर्म्स होते हैं, जैसे पहला है प्रूफ लोड। ओके, तो प्रूफ लोड्स क्या होता है, ये हम स्प्रिंग में जब कैलकुलेशन करते हैं, जिस समय स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये टर्म्स यूज करते हैं। तो प्रूफ लोड्स वो लोड होते हैं, इट इज़ द ग्रेटेस्ट लोड दैट द स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्टेड। मीन्स कि अगर हम कोई भी स्प्रिंग है उस पर अगर हमने लोड लगाया तो उतना ही लोड होना चाहिए, वो मैक्सिमम लोड, कि उसको अगर हटा दें तो अपनी रिगेन कर ले वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन। ओके, तो परमानेंटली डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग पे हमने लगा दिया और खींच दिया तो उसके बाद में फिर छोड़, जब लोड हटा दिया तो वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं पहुंची। तो हमको वो ढूंढना है कि कितना वो मैक्सिमम लोड तक अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारी जो स्प्रिंग है वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर सके। ओके, तो वो मैक्सिमम लोड जो होता है, ग्रेटेस्ट लोड जो होता है, उसको हम लोग प्रूफ लोड बोलते हैं इन स्प्रिंग में। ठीक,
उसके बाद में प्रूफ स्ट्रेस, तो जो एट द प्रूफ लोड जो भी स्ट्रेसेस होंगी उस समय वो हम बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेसेस। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन द स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रूफ लोड्स। ओके, दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म आप ये समझ लीजिए, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। ओके, इट इज द रेजिलेंस समझते हो, स्टोरेज एनर्जी, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम लोड आइदर प्रूफ लोड्स। ओके, तो जब वो मैक्सिमम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोड की बात कर रहे हैं कि उस लोड पर अगर हम उस लोड को हटा दें तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, और उस लोड पर जो स्ट्रेसेस होंगी उन स्ट्रेसेस को बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेसेस। और एट दैट टाइम द स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग, दैट एनर्जी is known as proof resilience. Okay, after that one term is very important in the according to the spring, that is the spring constant and it is denoted by K. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये होता क्या है, K को भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करेंगे। K होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो लिखा भी है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इट इज एक्सप्रेस इन न्यूटन पर मीटर आइदर किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये चीज हो गई है आपकी स्प्रिंग के बारे में। अब शुरू करते हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। मैंने बताया स्टार्टिंग में पहले हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेंगे, लास्ट में फिर आपकी लीफ स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हेलिकल स्प्रिंग के बारे में जब बात कर रहे होंगे तो हेलिकल स्प्रिंग 2 टाइप्स की है। ओके, 2 टाइप की है, तो 2 टाइप्स में आपको पता है, एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग एंड सेकेंड वन इज द ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ओके, तो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, क्या होती है, मैंने बताया था कि जो एंगल अल्फा होता है दैट इज द एंगल, वो लेस देन अगर 10 डिग्री है देन हम उसको क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बोलेंगे। अब वो अल्फा कहाँ पे होता है वो मैंने आपको बताया कि जैसे इस तरीके से स्प्रिंग आप बना रहे हो, तो अब देखिए ये जो आपका इंक्लिनेशन हो रहा है किसी का भी, तो ये एंगल जो बनेगा अगर हॉरिजेंटल से बनाना चाहे इसको अल्फा बोलते हैं। ओके, तो कोई भी स्प्रिंग जब बना रहे होगे तो उसमें आप देखिएगा बिल्कुल तो हॉरिजेंटल नहीं रहेगी, थोड़ा इंक्लिनेशन चलता रहेगा तभी वो स्प्रिंग फॉर्म होगी, तो वो एंगल अल्फा होता है। अगर ये अल्फा एंगल 10 डिग्री से कम है तो हम उसको क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बोलेंगे। और तो पहले हम क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में जान लेते हैं। A helical spring is a wire wounded in a spiral form which can undergo considerable deflection without getting permanently distorted. A helical spring is said to be a closed coil when the obliquity of the wire is small, means 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, it is maximum 10 degree. Okay, the pitch of the coil is very small. In closed coil helical, there are these leaves are the very close. That's why we can say here the pitch of the coil is very small. Each turn can be regarded as practically lying in planes at right angle to the axis of helix. Hence, closed coil helical spring is a torsional spring under the axial load. हम बात करेंगे कि एक्सियल लोड अप्लाई होगा तो इसको हम लोग टॉर्सनल स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो कई बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में टॉर्सनल स्प्रिंग और भी सारे स्प्रिंग्स, तो आप समझ जाइए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को टॉर्सनल स्प्रिंग भी बोलते हैं अंडर द एक्सियल लोड। इट मे बी एज्यूम दैट द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल ओनली, व्हाई, बिकॉज नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट शियर। किसमें, क्लोज कॉइल में बेंडिंग और डायरेक्ट शियर को नेग्लेक्ट करेंगे तो टॉर्सनल के बारे में ही केवल पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि इसके क्या क्या टॉर्सनल्स के कारण जो भी हमारे एक्सप्रेशन रहेंगे, जो फार्मूला ड्राइव्ड होंगे उनको ड्राइव करते हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में। ओके, देखिए स्ट्रेसेस इन स्प्रिंग, तो कौन से स्ट्रेसेस होंगे, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल लोड। अब देखिए आपको ये डायग्राम देखकर तो ऐसे नहीं आप बता सकते हो ये ओपन है क्लोज है, आपको पता है कि हाँ इसकी पिच बहुत कम है अगर, तो इसको हम कह सकते हैं क्लोज। एंड ये जो इंक्लिनेशन होगा एंगल, ओके, ये अल्फा में कम दिख रहा है तो कह सकते हैं, तो हम बना सकते हैं, एज्यूम करके चल सकते हैं कि ये हमारी क्लोज कॉइल है और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए स्प्रिंग यहाँ पर कहीं पे सेट की गई है, स्प्रिंग इस तरीके से फॉर्म हुई है पूरा,
और इस समय यहाँ पर अगर लोड आपका अप्लाई हो रहा है W, ये D डायमीटर ऑफ वायर दिया गया है, कैपिटल D क्या है, मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग है। ओके सॉरी, तो यहाँ पर ये अगर इस पे लोड जब W अप्लाई हो रहा होगा तो अगर इस वायर में हम यहाँ से वायर कट करके यहाँ पर अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो उस पर हम देखें कि कैसे कैसे लोड अप्लाई हो रही है। इसकी सेंट्रल एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ द कॉइल हो गई है। ओके, आप देख रहे हैं एक्सिस ऑफ द कॉइल पर हमें दिख रहा है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से मूवमेंट लग रहे हैं। तो जो टॉर्सन होगा वो T इक्वल टू एम कॉस अल्फा होगा। अल्फा कहाँ से होगा, वो एंगल जो हमने ये बनाया था आपका अल्फा। ओके, तो T इक्वल टू एम कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा होगा, ये मूवमेंट जो लगेगा वो M इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन 2 होगा। ओके, तो ये वाला हो गया। अब अगर एम वी की बात करें बेंडिंग मूवमेंट, तो वो एम साइन अल्फा हो जाएगा और टॉर्सन एम कॉस अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है एम, इसके कारण दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक एम कॉस अल्फा, सेकेंड इज द एम साइन अल्फा। एम कॉस अल्फा जो होगा वो टॉर्सन आपका हो जाएगा एम कॉस अल्फा, एंड बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एम साइन अल्फा। ओके, और m क्या है हमारा, ये मोमेंट है और इसकी वैल्यू आपकी रहेगी जितना लोड लग रहा होगा dy/2। ओके, तो ये dy/2 m जो मूवमेंट है वो w जितना लोड आप अप्लाई करोगे dy/2 लगाओगे, तो उसके कारण जो यहाँ पर अगर अल्फा एंगल के साथ m क्रिएट हो रहा है ये मूवमेंट। ओके, तो अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो एक आ जाएगा आपका m साइन अल्फा और एक आपका आ जाएगा m कॉस अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल बन रहा होगा तो ये जो साइन अल्फा वाला रहता है बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा एंड कॉस वाला टॉर्सन हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम में दिया गया है। अब इसको देख लेते हैं। स्ट्रेसेस इन क्या है, डी क्या है, मीन कॉइल डायमीटर, स्मॉल वायर डायमीटर, एन नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी हैं, लेंथ ऑफ द वायर, एक्सियल डिफ्लेक्शन, अल्फा एंगल ऑफ द हेलिक्स। ओके, मूवमेंट एट एनी पॉइंट W इंटू dy/2, बिकॉज स्प्रिंग में आपका टोटल ये जो डायमीटर मीन होगा ये D होगा और यहाँ पे अगर लोड लग रहा है तो यहाँ कहीं पर भी देखिएगा dy/2, मतलब W इंटू dy/2 ये आ गया। द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट द एंगल अल्फा रिजॉल्विंग द मूवमेंट along and right angle to the axis of the spring. Vector component along the spring T equal to m cos alpha, mv sin alpha. The component normal to the axis of spring cause bending and the helical angle of alpha wing is small. It can be neglected and cos alpha tends to unity for the small angle. तो इन दोनों में से कौन सा रहेगा, तो द वेक्टर कंपोनेंट along the axis T will be equal to m हो जाएगा ये। ओके, तो m हमारा W इंटू dy/2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की बात करें तो पाई डी उसकी सरकमफेरेंस हो गई, नंबर ऑफ कॉइल्स n है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मिल जाएगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग की बात करें तो हमें मालूम है π/4 d स्क्वायर, ये एक सर्किल की हो गई एरिया, एंड πd(n), इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। अब टॉर्सन फार्मूला इक्वेशन हमें पता है T/J इक्वल टू F/J R लिखा है यहाँ से हम शियर स्ट्रेस Fs निकाल सकते हैं, T/J आ जाएगा इंटू R आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं R की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ dy/2 हो जाएगी एंड T ऐसे लिखा रहने दो, J वैल्यू जो है मोमेंट ऑफ जो आपकी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है πd4 30/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 16T πd³ आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमने ला के रख दिया। तो हमारा ये तो फार्मूला पता ही, Fs इक्वल टू इतना हो गया, यहाँ को हमने सॉल्व किया तो हमारा स्ट्रेस आ गया 8WD/πd³। T की जगह पे रखे हैं, देखो ये जो T थी उसी की जगह पे इसको मैंने पुट किया है। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 8WD/πd³, वेयर W इज द लोड अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, D इज द मीन डायमीटर, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द वायर विच वी यूज फॉर द स्प्रिंग, और F इज द ईयर स्ट्रेस। इसको अल्टरनेटिवली भी देख सकते हो आप, यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा कैसे हमने इसको अल्टरनेटिवली ड्राइव किया है, सिंपल है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आप इसको देख सकते हैं और लिख लीजिएगा। ओके, और टोटल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ से दोनों को ऐड कर दोगे ये आ जाएगी। इसको ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा यही आएगा। के फैक्टर जो आता है उसको हम लोग वाल्स करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, ये के है और वो स्टिफनेस अलग रहेगा। When the wire diameter is very small compared to the mean radius of the spring, dy/4r wing to the too small, so can be neglected, then हमारा
एफ मैक्सिमम 16 WR / पाई डी क्यूब आएगा। तो वो पहला वाला मेथड याद रख सकते हैं, जिसको ये समझना है तो सेकेंड वाला भी मेथड आप समझ सकते हो। ओके, अल्टरनेटिवली है, लेकिन ये समझ जाइए स्प्रिंग में जब डब्ल्यू लोड लगाते हैं तो स्ट्रेसेस जो आती है वो कितनी आती है, 16 WR पाई / डी क्यूब यहाँ से आ गई, और जो हमने ये ड्राइव किया था फार्मूला तो 8 WD / पाई डी क्यूब। ओके, 8 WD / पाई डी क्यूब। ओके, थैंक यू क्लास।